Thank you so much for joining me, ladies. I mean, I can actually say you have kept me entertained this lockdown. I mean, there's been content, and what has it been like for you all? तो कौन बोलेगा? श्वेता पे आ गया। कौन बोलेगा? पहले आप गाड़ी ना निकल जाए। Well, it's been a difficult year. It has been not the best year all of us have had, and my heart goes out to a lot of people who have not had a great year in terms of jobs and the immigrants and the COVID. Of course, it's been a tough year, but I'm really happy as an actor, as an artist, that our community has been bringing smile and has been there for a lot of people who have been at home and have been sort of an escape into our little world of stories and characters that we bring for them. And yes, it's been 5 releases for me thus far, and Wow. all of them diverse, all of them different platforms. And thank you so much. I'm really actually very happy to share this platform with these wonderful actors that I'm personally a huge admirer of. So agree. Some have made us laugh, some have made us cry, but basically entertained us all. So yeah. Same, like for me also, it was both ways. Like Choked came when during the lockdown. So, but as you said, even I could see all my fellow actors right now. I could see their projects, and so I was audience also, and I was actor also during the lockdown. It happened for me like that. And as Shweta said, yes, even everyone was tense. We didn't know what's happening with us. What is this lockdown thing, COVID? All those tensions, I think these OTT platforms, these wonderful projects, we could be away from that tension because of these projects. And for me as an actor, it was different kind of publicity game also, because otherwise जब project आता है तो अलग तरह का publicity होता है, but everything like we are doing it right now. So like, I did one ad also at my home. I'm doing makeup, I'm doing hair. Then, I'm sitting in front of the camera. My husband is on camera for me. So like, it has been a very different kind of learning process for me during lockdown as far as the work is concerned. And yes, I have been grateful to, as Shweta said this, and as you said, to our profession, that it kept us sane, I would say. True. True. Indira and Aisha. Yes, Aisha. Yeah, so I think it was a very tough year, and I think I would consider a lot of us amongst the fortunate ones that we had food on our table and we had safe homes to be in, and we had possibly enough money in the bank for a lot of us that we weren't stressing out about what's going to happen next. But I think there were so many members from the theatre community and the acting community who were literally on edge, and we've had that, I think, the initial phase of that feeling, and then moving on to things getting more stable, work opening up, and then, of course, the OTT platforms like Netflix providing us with such solid entertainment of very different kind. Right? There was, serious stuff and funny stuff and something for everybody. And I think that's what really, I think the entertainment industry really came through in a time like this, where it was sad and depressing and uncertain. But you had something to look at, and you had actors who were out there and who were before, and it was coming out at a time where it really made a difference to people. It made a difference to me, So I think that's what's been great about watching all this stuff on Netflix, and it's been good. Whenever I look at Indira, I think of a character Oja Mani. But what does it be like for you? Hello. Hi. Yeah, Indira. Yeah. So लॉकडाउन जिस तरीके से लगा, मैं घर के बाहर थी, तो मतलब मेरे लिए काफी, पहले मेरे को एकदम से लगा पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ, बट जिस तरीके से चीजें होती जा रही थी और पता चला, बातचीत हुआ, तो एक दूसरे से बात करके काफी संबल मिलता जा रहा था। एंड देन सिचुएशन को हम कैसे करें, मैंने भी पूरा टाइम अपने आप को एक जगह पे पैक करके और कैनवस में ले आई थी, तो मुझे काफी रिलीफ था कि मैं पेंट कर रही थी लॉकडाउन के टाइम पे। एंड देन बहुत सारी चीजें हुई, कुछ लिखा, और एक होता है ना कि स्कूल कॉलेज और चीजों के बाद, लाइक स्कूल कॉलेज देन NSD, तो मुझे एक भी ब्रेक नहीं मिला था लाइफ में। मेरी लाइफ में इतना सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था
कि पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। तो इतना मिक्स्ड इमोशन के साथ मैं रही हूँ ना लॉकडाउन में। एंड देन एक ब्रेक मिला मुझे, वो ब्रेक शायद बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो एज एन इंडिविजुअल मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, सेम कि खाना घर पे था, चीजें थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली से बात हो रही थी, काम था, मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही मुंबई में थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था, और जितना काम मैंने पहले किया था वो सब अब आने का टाइम था। तो अक्टूबर में मेरा सारा जो भी मैंने जो फर्स्ट फिल्म किया था वो आया। देन सेकंड मैंने फर्स्ट जो किया था वो भूटान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गया। सेकंड जो किया था वो मामी में सिलेक्ट हो गया। एंड देन थर्ड सीरियस मैन आई नेटफ्लिक्स पे, तो वो हुआ। तो मतलब बहुत सारी चीजें बैलेंस हो गई। पता नहीं शायद ये सारी चीजें नहीं होती तो फिर मैं कैसा रिएक्ट करती है, मेरी स्थिति होती वो अलग बात है। बट चीजें होती है, वो बहुत सारी तकलीफें मिलती है, तो उसको आपको संभालने का हिम्मत और ताकत भी मिलती है कहीं से। तो चीजें बैलेंस हुई काफी। और मतलब भाई उम्मीद है जल्दी से जल्दी सब कुछ बेटर होता जाए तो अच्छा है। चलो ना, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर्स, बिकॉज ये जो 3 फिल्मों में आप चारों हैं, दे हैव बीन द टॉक ऑफ द टाउन। सो आई विल स्टार्ट विद श्वेता बासु प्रसाद। मैं आपको एक याद दिलवाती हूँ, 2002 में जब आपको नेशनल अवार्ड मिला था ना मकड़ी के लिए, यू हैड गिवन मी अ साउंड बाइट देन। It's been, it's been a while now. Oh my God. What did I say? Must have said something I don't know what. No, you were just विशाल सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चे उनको पढ़ा के बोलते हाँ, जो पढ़ा के बोल देते। And it's really amazing speaking to you here now as like, yeah, it's 18 years later. It's been 18 years, yeah. 2002 विज्ञान भवन नेशनल अवार्ड्स। देखो मेरे को याद है, I was like मकड़ी वाली, you know, ये मकड़ी वाली जो टैग है ना, मैं आपको बता दूं, अभी तो फिर भी सीरियस मैन आया है नेटफ्लिक्स पर और कई सारे दूसरे काम आए हैं, तो अब लोग ये नए काम के रेफरेंसेस देने लगते हैं। वरना एक टाइम ऐसा था जब मैं कॉलेज में थी, लोग बोलते थे अरे तुम बड़ी हो गए ना। I'm like, हाँ ये होता है, सबके साथ होता है। I know. You know, actually, somewhere as a viewer, I'll tell you, Shweta, like whether it's you, whether it's Jugal Hansraj, whether it's Avika Gaur, I always think ये तो छोटे बच्चे थे, इनको क्या हो गया? And you know, literally, you don't want child stars to grow up. You're like, ये तो छोटे बच्चे हैं। मैम आपने तो फिर भी बोला ग्रो अप। पता है, मैं एक बार, मैं शायद उसे फैन बुलाऊं या क्या बुलाऊं, मैं पृथ्वी थिएटर में थी। आई मस्ट हैव बीन 19-20 इयर्स ओल्ड, कॉलेज का टाइम था, और मैं अपनी दोस्त के साथ एक प्ले देखने गई थी। एंड वो आया और उसने बोला अरे तुम मकड़ी वाली इकबाल वाली लड़की हो, मैंने फिल्म देखा, मुझे बहुत पसंद आया। बोलते यार चाइल्ड एक्टर्स ना इनको बचपन में ही मार देना चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। मैं सोच रही हूँ ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। It's like तुम लोग, अब मैं कैसे देखूं मकड़ी, because you know now I'll think of you like the way you are. I'm like, oh God, psychoanalyst. अरे उसको बोला अनुजा का कैरेक्टर देख ले सीरियस मैन में, मकड़ी वाली लड़की पूरी भूल जाएगी। That's the thing about child stars. Everyone thinks like they should be just that, and when they grow up and then they do adult things, you are like, अरे ये तो छोटे बच्चे थे, you know. That's yeah, but you know, luckily I've had a very long break, Pooja, because इकबाल के बाद कई सारे offers आए थे, काफी prestigious in fact filmmakers and television shows वगैरह, and I'm so glad that my parents said no to all of that, because their priority was my upbringing and my education. So I completed my graduation in mass media and journalism, and then I've always been very fond of cinema, because घर में मतलब मैं बड़ी हुई हूँ ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी और साई परांजपे और बिमल रॉय। तो मेरे जमाने की पिक्चरें थी यार श्वेता। मैम बिकॉज मेरी मम्मी ना हिंदी पैरेलल सिनेमा की बहुत बड़ी फैन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सीन ऑल दीस दीप्ति नवल्स एंड गोविंद निहलानी एंड कुंदन शाह, ये सारी फिल्म, मतलब केतन मेहता की मिर्च मसाला वगैरह मैंने मतलब तब देखी जब मैं कॉलेज में थी, एंड देन आई वाज एक्सपोज्ड टू फिल्म फेस्टिवल्स, तो वर्ल्ड सिनेमा देखी है। तो मेरा एसोसिएशन हमेशा सिनेमा से फर्स्ट एज एन ऑडियंस रहा है, देन एज एन एक्टर रहा है। सो आई वाज वेरी श्योर दैट आई वांट टू डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ सिनेमा, बट उसके बाद मेरे था मैं क्या करूं, तो आई स्टार्टेड असिस्टिंग अनुराग कश्यप। आई वाज वर्किंग एट फैंटम फिल्म्स एज अ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। मैंने कुछ 4 साल लगाए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अबाउट द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बिटवीन 2011 to 15। तो मैं कभी फिल्म स्कूल नहीं गई या कभी theater nahi kiya, and I don't say this as a boasting. I mean, it's my loss. I hope to enroll myself for a film school or do plays someday. It's a dream to be that. But that's been my journey. I've always worked and learned.
and abhi acha hai, and that's why maybe, you know, because I've had so much exposure behind the camera, that now in my mid 20s, late 20s, I'm getting a lot of the work. And हाँ, कभी कभी लगता है कि अभी भी लोग मकड़ी और इकबाल के बारे में बात करते हैं, but I think that's a compliment. I think I'm very proud of both the films, and you know, I'm so glad that I did those films. But it's a welcome change when people watch Serious Men and they're like, oh wow, it's been a long time. True. So I'll come back to you again. Let me ask Ayesha, she's everyone's favorite mummy. You remember, you know, somewhere we had lost that mama character. एक तो निरुपमा रॉय जैसी मम्मी होती थी जो रोती थी और उनके बच्चे हमेशा गुम जाते थे. फिर रीमा लागू जैसी मम्मी आई because 90s there was a resonance with that kind of a mother. Now it just seems the mother of the millennials is Ayesha Raza because she is chilled out. She is, and she also has some quirks. Whether it's or whether, you know, it's Guinea with Sunny. What is it like, Ayesha? I mean, like you're the cool mom. I hope to be. I also tend to get cast in this strict, dominating wife, और बेचारे I get all these maskeen husbands जो बेचारी अपनी बीवी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं, और you know कैसी हो रियल लाइफ में ऐसे ही हो, बोल नहीं सकते हैं कोई आपके साथ? यार वो कुमुद मिश्रा के साथ अलग इंटरव्यू कर लो, वो तुम्हें ज्यादा तफसील से बता देगी कि मैं इतनी डोमिनेटिंग हूँ. एटलीस्ट मैं सोचती नहीं हूँ ऐसा, नहीं, आई एम नॉट. मतलब अगर वो मुझसे दबता है तो, बट वो उससे पूछ लीजिएगा. But I think it's as I was saying, it's a very fine line with mothers because they're not very unfortunately like maybe Serious Men or Gully Boy, where the women characters are you know, they have better arcs. The characters I played have very little arc, except Giri Wet Sunny, which was I think a role where I had a lot to do. True. Apart from that, I've had very little presence in most of my films. People think it's very big, but actually it's been like इधर गए डायलॉग बोला वहां तो गल्ला गुड़िया मम्मी फॉर मी, यू नो दैट ना, 6 साल हो गए उसके. हाँ मैं बता रही हूँ, बट वो होता है ना कि आप अगर कर टेंशन से वो रोल कर रहे हैं, यू नो, नॉट टू फील कॉम्प्लेक्स कि यार इतना सा पार्ट है उतना सा पार्ट है, जो आपका पार्ट है करिए, जाइए, मजा कीजिए. एंड अगेन विद दीज काइंड ऑफ रोल्स बहुत सोचा नहीं जा सकता, आप उसमें बारीकियां निकाल सकते हैं, बट आई थिंक उसमें मजा आना, एंजॉय करना, एक्सेप्टेंस के साथ करना, and to keep finding something new in each character. It's tough because it's not written like that. None of the characters have been written with any newness, and Kumud keeps telling me, that's your job. You need to find the newness. You need to find the nuance. You need to find the motivation behind your relationship with, whether it's your son. I mean, I'm playing mother-in-law to Akshay Kumar in 2 films. And you know, to be able to accept it, saying, yeah, dude, fine. That's what it is. You know, my son is 11, but Akshay sir is my son-in-law. But, you know, yeah, so you say, ठीक है boss, you know, that's where you say, I will credit Kumud with this because as a woman, you tend to be vain. You tend to want people to think you're younger than you are, or at least you are your own age. But when people think that I'm 44 and they need to cast me as 65, थोड़ा बुरा तो लगता है. I'm not going to say कि बहुत मजा आता है. True. But again, acceptance, maza, enjoy karo, and I think if that translates on screen, people connect to you and people enjoy. So it's a very simple, yeah. So Amruta next, Sharvari Tai. हमें अनुराग कश्यप की इंटरव्यू कह रहे थे, वो कहते हैं she's a female Nawazuddin, and I was like, you know, female Nawazuddin का मतलब क्या? I mean, like male actor का क्यों connotation देना है यार? वो actor है, versatile है. So anyways, Amruta, what was it like playing Sharvari Tai? What I liked about her, she's very non-judgmental है वो, कि जो सयामी के कैरेक्टर के साथ हो रहा है, but अंदर कुछ होगा अपना perception मगर दिखाती नहीं है. So what was that experience for you? So yeah, as you very rightly said, she's a very complex character जो मतलब दिखा कुछ रही है लेकिन है कुछ. और मैंने अभी पहले भी कहा कि you know, मैंने ऐसे चौल में काफी लोग देखे हैं जो आप मतलब आप कह नहीं सकते ये एथिकल है या मॉरल है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, बट देन दे डू इट बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल इट इज नीडेड. सो शर्वरी ताई, जस्ट वन सेक, आई पंखा बंद कर, खूब आवाज है, सॉरी. सो शर्वरी ताई इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो आप उसको मॉरल एथिकल इस सब में रख नहीं सकते. एंड मेरे लिए सबसे बढ़िया बात उसमें ये थी कि
मैंने बहुत सालों के बाद एक क्या कहते हैं डिस्ट्रेसिंग था मेरे लिए। शी वाज नॉट सीरियस काइंड्स ना, बिकॉज गली बॉय या केडीवाई कुसुम देवी यादव भी जो मैंने किया, वो सारे लोग किरदार थोड़े से सीरियस और तो ये शर्वरीता ये हंसने वाली थी, एंड अनुराग लेट्स मी इम्प्रोवाइज, तो मुझे वो इम्प्रोवाइज करने में बहुत मजा आ रहा था. So it was de-stressing for me to do Sharvaritai, and as I was saying कि शर्वरीताई हो, कुसुम देवी यादव हो, या फिर जो सिलेक्शन डे में काम किया, या फिर गली बॉय हो, I find myself very fortunate कि मैं ऐसे टाइम्स में हूँ जहाँ पे अभी एक्टर्स को टाइपकास्ट नहीं किया जा रहा है. जी मतलब आप कह सकते थे कि भाई गली बॉय में मर्डर कर रहे हो तो आगे क्या होगा पता नहीं, शायद आप फिर जैसे ये देयर इज अ रिस्क कि भाई वैसे ही किरदार आए, तो एक टाइम था जब ये होता था, बट आई फाइंड माई सेल्फ इन अ वेरी लकी टाइम कि जहाँ पे गली बॉय के बाद कुसुम देवी यादव आई, जो कैरेक्टर नॉवेल में मर्द का कैरेक्टर था, जो उसके राइटर्स ने फीमेल का कर दिया. और वो ऐसी औरत है कि जो सबकी बैंड बजा देगी, एंड शी इज बैड. नवाज को भी ऐसे वैसे बोल रही है. नवाज मुझे कह रहा था, यार तू मेरी जूनियर है लेकिन कैसी बैंड बजा रही है मेरी, तो तेरे को शर्म नहीं आती? तो लाइक दैट काइंड ऑफ, तो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स एंड ऑल दीज OTT प्लेटफॉर्म्स एंड न्यू फिल्म मेकर्स जिनको इस तरह के किरदार लोगों के सामने लाने हैं, सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू be in these times ki no one is typecasting, and you're not saying that this is a supporting cast. These are, every character is in a character herself, like it's a role. So Sharvaritai bhi ek human being hai rather than aisa mujhe laga. नहीं totally, which I'll come to this question abhi after I speak to Indira. Oja Mani, I liked her character. पहले मेरे को लगा ये कुछ बोलती नहीं है, इनके पति तो लगे हुए हैं अपनी हेयर ब्रेन स्क्रीन. देन टुवर्ड्स द एंड शी स्पीक्स अप, कि बोलती है कि ये सही नहीं है. व्हाट वाज इट लाइक? आपको ओजा मनी कुछ रेजोनेंस लगा उस कैरेक्टर के साथ, और या दिमाग में था ये ऐसा क्यों कर रही है? बिकॉज एक्टर ऑफन प्लेज अ कैरेक्टर जिनके साथ वो रेजोनेट नहीं करते हैं पर्सनली. इंदिरा यू ऑन म्यूट पे हैं आप. आपने एंड में जो बोला वो सुनाई नहीं दिया लास्ट में. मैं कहा आपने कैसे रेजोनेट किया ओजा के साथ? बिकॉज एक्टर्स जब उनको कैरेक्टर मिलता है वो कभी कभी हेड स्पेस में जाते हैं और कभी कभी जज भी करते हैं ये एक कैरेक्टर ऐसा क्यों है, बट देन दैट्स द एक्टर्स जॉब ना. तो आप एक्चुअली ओजा मनी जिस तरीके से, मतलब जब मैंने पढ़ा था और मैंने ऑलरेडी नॉवेल भी पढ़ा था, तो मुझे नॉवेल से काफी डिफरेंट लगा और मुझे लगा ओके ये इस तरीके से जाती है. तो पहले कई बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मन में आया कि अगर ये नहीं होती तो क्या चल जाता. मे बी वो बच्चा होने के बाद वो मर जाती, हो सकता है वो खत्म हो जाती, हो सकता है वो बीच में रहती. तो ऐसी क्या चीज है जो उसको, ओजा मनी को पूरी थ्रू एंड थ्रू कहानी में वो क्या कर रही है, उसकी तरफ से उसका सपोर्ट क्या है. तो वो पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि शायद सिर्फ ओजा मनी एक चीज है जिसकी वजह से आप जो कैरेक्टर है अय्यन मनी का, उसको आप देखते हो कि वो लवेबल है. बिकॉज अगर ओजा नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है. इतना बड़ा उसके माइंड में मास्टर गेम चल रहा है, एंड सिर्फ एक ही चीज है जिसका उसको फर्क पड़ता है कि तेरी माँ जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तो मुझे एक पॉइंट पे वो मुझे एक धागा मिल गया कि हाँ यार ये एक जा रहा है जोन जिस तरीके से हम जा रहे हैं. और फिर कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे लग रहा था कि उसको बिना बोले बहुत कुछ वो बोल देती है, उसको सब कुछ दिख रहा है एंड वो फील कर पा रही है. कहीं कहीं तो उसको पता नहीं है. जहाँ स्कूल पे है तो जैसे सोसाइटी में वो निकलती है और उसको जैसे स्कूल वाले सीन से उसको इंग्लिश नहीं आती है, बट जहाँ जहाँ हस्बैंड है वहां पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो वहां पे स्टैंड कर रही है, सब कुछ देख रही है, समझ रही है, उससे पूछ रही है. शायद बम्बई उसकी नजर से वो देख रही है जहाँ पे वो रह रही है, चीजें जो है. तो वो सब होना और बच्चे के साथ मतलब वही अपनी छोटी दुनिया में चीजें बनाते जाना. तो मुझे बार बार लग रहा था नहीं यार ये बहुत कुछ कहती जा रही है. और हर जगह सब एंड में आके जिस तरीके से वो फटती है जब उसका ब्लास्ट होता है कि नहीं यार अब हो गए, तो वो ऐसा कि प्यार तो बहुत करती है बट जो चीज रॉन्ग है उसके लिए वो उसका टेक रखती है. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी. मुझे लगा कि ये आम जो औरतें होती है जो कि लाइक अभी भी आप देखोगे लोग इतने इन्वॉल्व है हर चीज में कि मतलब इतनी लेयरिंग्स है ना कि सोसाइटी में बहुत कुछ चल रहा है और आपका दिमाग खाली नहीं रहता. बट ओजा मनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो गॉसिप में नहीं है, जो सोसाइटी की औरतों में नहीं बैठती है,
वो अपनी फैमिली में रहती है, तो ये कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दिमाग को खाली रख के सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा टीवी देख रही हूँ, और वो रोने लगती है टीवी देख के। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर शायद पहले तो होते थे, अभी पता नहीं कितने लोग हैं जो घर में बहुत ज्यादा इस जोन में जाते हैं। तो मेरे लिए ओजावरी बड़ी, मैंने बहुत प्यार से बनाया उसको, मेरे को बहुत मजा आया काम करके। तो मेरे लिए नहीं था कि डायलॉग्स है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, पार्ट कम है, लेकिन मेरा हमेशा ये था कि मैं इन लोगों को कैसे सपोर्ट करूं पूरे टाइम। तो वो था बस, मेरे बच्चे और मेरा पति, बस वैसा ही वाला जोन मैंने पकड़ के किया। जैसे हम लोग कहते हैं ना सपोर्ट, हमारे अवार्ड्स भी वैसे होते हैं, all awards, whether it's the Oscars or Filmfare, it's always like main lead actor, lead actress, supporting actor, supporting actress. But what the change I've seen with OTT is, no, everyone's supporting each other. An actor is an actor, and everyone's got an arc. Do you think this is also because no longer एक story एक hero या heroine के perspective से सुनाई जा रही है? मदर्स का जैसे आपने बात किया, यू टू द नेम्स ऑफ लेजेंडरी मॉम्स, एंड आई थिंक जब तक निरूपा रॉय जी का टाइम था, वो मदर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था. इट वाज अराउंड द मदर, हर जर्नी, हर पेन, हर चिल्ड्रन. सो आई थिंक एट दैट टाइम निरूपा मैम played mothers that were very central to the story. Yeah. Then we got into the 80s and 90s sort of era of Bollywood. OTT तो खैर था नहीं. उसमें ये relegated to apple छीलना काटना and टोस्ट पे मक्खन लगाना. खा ले. हाँ, नहीं उसको कुछ मत कहिए, वो आपको देर से आया है, फिर वो हीरो आपको कहता है, हे डैड, मॉम, गॉड फॉरगेट, नाश्ते में क्या पराठा, तो नहीं बेटा मैंने तो वहां हलवा बनाया. तो ऑल दिस वाज हैपनिंग, दैट दौर ऑफ मॉम. एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं चाहे शुरू में करूं अपने करियर के या बाद में, मैंने अपने डायरेक्टर्स को 2 बातें कही थी कि मैं मॉम बन जाऊंगी, खुशी से बन जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उम्र दिखानी है दिखा दो, एप्पल नहीं छीलूंगी तो उस पर मक्खन नहीं लगाऊंगी. तो ये मैंने रूल बना दिए थे. तो मैं डायरेक्टर्स आर लुकिंग एट मी, तो देयर इज टाइम्स व्हेन दे लुक एट यू कि मैम आप नाश्ते के टेबल पे बैठी हैं, ये टोस्ट, मैंने कहा टोस्ट एप्पल नहीं होगा, करा लो. एंड चूल्हे के ऊपर बैठ के व्हेन शी इज लाइक, वो नहीं है यार, वो आर्ट सिनेमा में चली जाऊंगी भाई, कोई मुझे ले ले, मैं तो कमर्शियल मैं तो चूल्हा फूंकना चाहती हूँ भाई. कमर्शियल में तो सिर्फ रामू काका प्लीज इनके लिए कुछ लो जरा मीनिंगफुल. हम तो पागलपंती करते, मजा आ रहा. बट आई नहीं भैया, मक्खन नहीं लगाने वाली. तो आई थिंक दैट हैज नाउ कम इनटू दैट. No more are the mothers kiloing apple and toast pe makhan. So that for me is the only way to define that there is substance to these roles. There is an arc, there is an intention. Even if they're small characters, they have a say in the functioning of the story. They have a say in the development of the so-called lead actor's journey. You know, वो relationships मायने रखती है. और आप देखते हैं कि जहाँ character actors की casting अच्छी होती है ना, वो फिल्म ऐसे लिफ्ट होके आती है. एंड आई बिलीव दैट. आई एवरीवेयर ऐसी आ रही, यू नो, इट जस्ट एड्स सो मच टू द फिल्म. आई सो एग्री विद यू. अमृता, श्वेता, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी, बिकॉज अगर श्वेता का कैरेक्टर अनुजा इज द कैटलिस्ट जो उसके दिमाग को, और वो सिमिलरली आपका, बट वही मैं कह रही हूँ, आजकल एवरी कैरेक्टर इन एन ensemble cast has a story. For that matter, even the so-called hero and heroine also is a character, is a supporting actor. Nice, nicely put. I think we need to firstly rearrange the terms. You know, everybody is a character in the film, and that is so rightly put by you, Pooja, because everybody is a character. आपके life में भी अगर आपके माता पिता से आप रोज मिल रहे हैं, आपके भाई बहन के, आपके पार्टनर से, आपके फर्स्ट सर्कल दोस्त से आप रोज मिल रहे हैं, there are people you meet once in a week or once in a month. बट वो आके जाके हंस के ऐसे नहीं जाते हैं, वो भी आपको कुछ बोलते हैं, आपके दिन में वो कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं. यू नो, इफ यू लुक एट इट एज अ स्टोरी, every character needs to be significant and needs to take the story forward. Otherwise ऐसा नहीं होता है लाइफ में. आप किसी से भी मिलते हैं, they have some arc, they have their own problems, set of own lifestyle. Even if everybody is a teacher, even in a school, you know, every teacher is different. You meet mothers, they are different. You meet journalists, all of them are different. And everybody comes with a certain expertise, with a certain lifestyle, with a certain experiences in life. And today, thankfully, the writers have started writing that. Also, you know what Amrita ma'am was saying, that I think even Aisha ma'am was saying that, you know, it's also an actor's responsibility to sort of bring something out in characters, like Amrita ma'am did in Choke. You know, it was maybe not written or not seen that way, but when you bring a female gaze to a female character,
there's a lot of other colors that you can explore, and people notice that even if it's in one scene, one frame, a single gesture, you know, if she's doing that with her co-star in Choke, you know, वो दिखता है. और अगर आयशा मैम ने टोस्ट लगा दिया, वो भी दिखता है. So I think it's also an, you know, as actors, to constantly bring out the best that we can in the given space that we have on screen. But I also think, taking from Shweta's point, that our audiences have become so much more savvy. Yeah. You know, they're looking at things. They are not looking at generic cardboard cutouts of mom, dad, sister, servant, hero, heroine. You know, people are questioning now. You have questioning audiences, you have teen audiences, you have interested audiences, and it matters to them. They will ask you a question. आपने ऐसा क्यों किया? वो आपने, you know, you meet a fan, or you meet a general audience observer, and they'll come and question you. And I think that has been the dramatic change from generic filmmaking or television making to what has now come out in the writing. And I only hope that it can go further and deeper, because we're at a really good place. I think it's the best phase as an actor. Yes, ma'am. Sorry, Amrita ma'am. No, please complete. No, please, ma'am, please. I was just, please go ahead. Sorry. No, तो मुझे एक बात याद आई, because this is a very nice. पूजा ने बहुत अच्छे लफ्ज में ये कहा कि even protagonist is a hero is a character now. ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी. So उसके बारे में मुझे नसीर सर ने बहुत अच्छी बात कही थी. नसीरुद्दीन शाह सर ने. He was my teacher in NSD. By the way, Nasir sir and my mother, they were batchmates at NSD. So Wow. And you all know that my mother has played my mother-in-law in Gully Boy. Oh, Yeah, she's my real life mother. माँ को सास भी बना दिया फिल्मों में. जी. तो जोया ने मेरी माँ को मेरी सास बना दिया था. तो यार, सो नसीर सर हैड सेड, मतलब मैं उनके बारे में उनके साथ भी जब बातचीत करती रहती थी, सो ही सेड, बेटा, डू अ रोल, एक्सेप्ट अ रोल जिसका कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे दिखता हो. यू नो, ही हैड गिवन मी दैट रूल. और अगर आप प्रोटोगोनिस्ट हो और अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, और अगर आप सिर्फ एज श्वेता राइटली सेड हंस रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो you know, I have said no to such roles, but I have maybe accepted certain roles जिनका conflict screen पे दिखा हो. And then like I'll give an example कि जो अस्तु नाम की मैंने फिल्म की थी जिसके लिए नेशनल अवार्ड था, मुझे वो only 10 minutes रोल था, but I knew that उस किरदार का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है. सो आई थिंक नसीर सर हैज सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर मी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है उस किरदार का, देन यू नो इट इज वर्थ डूइंग इट. अदरवाइज अगर फुल लेंथ रोल है और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देन देयर इज नो फन. I agree with this, just like Indira's character Oja. And Shweta, what were you saying? No, I was saying, you know, and it does not matter what's the length of your screen presence. It doesn't matter आपका scene कितना है. आप अगर 7 एक फिल्म है, वो अगर आप देखिए, उसमें पूरे फिल्म में मॉर्गन फ्रीमैन और ब्रैड पिट है, और लास्ट में जाके केविन स्पेसी आता है. But you know, it's just, you can do it in one character as long as that character is significant to the film, to the story that you're telling to the audience. आप एक scene कर सकते हैं, and that can just be enough if you're, you know, if it's well written, if you're an actor. And you know, I think ये काफी time तक हो रहा था that actors are very possessive about their screen presence. लोग edits पे बैठते थे, हमने अफवाहें सुनी थी कि लोग edits पे बैठते थे. हाँ, दूसरे का रोल कट मारते थे. हाँ, ये सारी अफवाहें सुनी है. I mean, मैं भी वही बोल रही हूँ जो लैंग्वेज में मैंने सुना है. लेकिन अब अगर वो होता भी था तो नहीं होता है, because today even actors, established actors want good actors, because acting is all about responding. It's all about responses. It is about reaction. अगर मेरे सामने वाला एक्टर, मैं सोच रही हूँ इसका डायलॉग ज्यादा क्या है या ये क्यों है, you don't even realize it's going to affect your own performance. It's going to affect the scene, and collectively it will just take the entire movie, the entire project down. True. So it is very important for, you know, every character. Continuing from what Shweta is saying, कि मेरे लिए भी, because again मैं थोड़ा सा typecast category में हूँ. I mean, इसमें अच्छा बुरा क्या है, because I'm grateful के काम है. देखो, एक practical standpoint से आप काम कर रहे हैं, आप लगातार audience में दिख रहे हैं, people are appreciating you, and that is taking you further in your own प्रोफेशन. लेकिन मेरे लिए सब, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं ले दे के माही का कैरेक्टर मिलेगा ना, मुझे और कुछ तो मिलने वाला नहीं है, या फिर एज आई सेड मम्मी चाची बुआ मौसी 4 कैरेक्टर. लेकिन मेरे लिए जरूरी है, मैं हमेशा कास्टिंग वाले से पूछती हूँ, अरे यार मेरे हस्बैंड के रोल में कौन है, अगर हस्बैंड है उसमें तो, और अगर मेरे सीन्स वहां ज्यादा सेट है मदर फादर,
I'm very excited to know कि भैया husband कौन है. And the moment someone says, "अरे it's Gajraj Rao or it's Manoj Pava or it's Pankaj Rao," I'm like, "Oh, dude, this is like, you hit the jackpot with those kind of answers." लेकिन real life में तो अच्छा वाला ले आई मैं. तो मैंने कहा screen पे. Love it. Awesome. Anyways, ladies, before I wrap up, आप चारों को एक ही ये सवाल, are you happy the way narratives for women are being written? Because वो पहले shades होते थे, माँ है, vamp है, या वो heroine है, और आज वो सब कुछ play कर सकती है. Whether it's Indira as the quiet Ojamani, whether you are Anuja, you are Sharvari Tai, and you and Ginny and Gunjan, are you happy with the way roles are being written for women? And age is no bar, because होता था ना 30 के बाद तो आपको सिर्फ मम्मी ग्रैंड मम के रोल मिलेंगे. अब नहीं है. नहीं, अब ऐसा नहीं है. अब ऐसा बिल्कुल नहीं. I feel काफी बदल गया मेरे को लगता है. Yes, I'm very happy. I'm very happy the way things have been shaping up, because Pooja, you know what? मैं इस टाइम में हूँ जहाँ पे Sacred Games 2 में कुसुम देवी यादव ये कैरेक्टर नॉवेल में मेल कैरेक्टर था, और जहाँ पे वो मेल कैरेक्टर फीमेल कर दिया जाता है, और अगर वो किरदार हमें करने को मिल रहा है, सो आई थिंक वी आर इन वेरी गुड टाइम्स जहाँ पे women के लिए as you said, कुसुम देवी यादव cannot be slotted in any character, मतलब any slot कि भाई ये किसी की बहन है या माँ है या कौन है. So she in herself is a human being. So human beings are being written for actors like us, all of us. As you said, whether it's Shweta's character, whether it's Indira's character, whether it's Ayesha ji's character. So हम सारे human beings बन रहे characters हैं, and that's a very good time to be in. जी. Yes, Indira. मैं भी बहुत खुश हूँ, बिकॉज जब मैं पिक्चर देखती हूँ तो मैं ज्यादातर मैं कहानी के थ्रू जाने की कोशिश करती हूँ. तो मुझे स्टोरी देखनी है. तब मेरे लिए कोई नवाज नहीं होते, कोई इंदिरा नहीं होती, कोई श्वेता नहीं होती. तो मेरे लिए वो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा उसमें रहती है कि देखो, तो वो शब्द से बड़ा अजीब लगता है कि ये एक्टर इस एक्टर को खा गया. मुझे ये शब्द ही पसंद नहीं है. वो बहुत ही बकवास होता है. I back you, Indira. Very well said. Very well said. True, I agree. It's the character जो कैरेक्टर को खाता है वैसे. ये ऐसा बोल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस बैठी हुई है कि लाइक ओके, मैं अभी नवाज को देख रहा हूँ, नवाज क्या कर रहे हैं, ओके फाइन, ओके अभी कुछ गड़बड़ किया, अच्छा आया, इसने खा लिया. तो मुझे लगता है वो अपना ही गेम चलाते, तो कहानी से दूर होके वो एक एक्टर को उनकी इमेज से देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं. कहानी से वो कहीं गायब हो जाते हैं, इसलिए उनको 2-3 बार देखनी पड़ती है फिल्म. फिर वो बोलते हैं ओके फाइन, आप समझ में आ रहा है. तो मुझे लगता है कि वो छोड़ के अगर आप कहानी के साथ जाओगे ना तो ज्यादा बेटर होगा. आप कहानी देखो ना यार, किसी को आप उसकी पुरानी इमेज में ही अटका के रखा है, आप खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे हो. तो मैं वैसे देखती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. मुझे ये लोग, मैंने गली बॉय में जब देखा था मैं ऐसी हो गई थी, ओ आज हमारा इंटरव्यू है, अच्छा गली बॉय में ये कैरेक्टर जो बाप रे, विजयराज सर के साथ, मतलब बोलते हैं ना कि विजयराज सर का जो कैरेक्टर रहा, वो आपके कैरेक्टर को कोई मतलब जिस तरीके से आती है, मुझे इतना इनका इमोशनल सीन ऐसा अंदर लगा ना. Love you, Indira. गुंजन सक्सेना देखा था जब मैंने, उस दौरान वो मैं श्वेता का जितना काम देख रही हूँ, ताशकंद फाइल या जो मैंने बचपन का देखा या जो अभी देख रही हूँ, हर चीज में वो जो कैरेक्टर्स लेकर आ रहे हैं. और क्या होता है जब हम लोग देखो ना, हमारी आंखें एक जैसी होते हुए एक जैसी नहीं है, तो दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, तो कैरेक्टर एक जैसे कैसे होंगे. आप so well said, so well said. Thank you so much. श्वेता, ज्यादा आप कुछ कहना चाहती हैं? The little girl who जी. Oh my God. Well, मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि औरतों के लिए बढ़िया कैरेक्टर्स नहीं लिखे गए थे, लेकिन they were very far and few. मतलब अछूत कन्या जैसी फिल्म जो 1936 में आई थी, देविका रानी और अशोक देविका रानी. That was very progressive film. It was, yeah, she was a very progressive woman. She was a producer and a wife and very, very out there in the 1930s. उसके बाद की भी अगर आप फिल्में देखें, बिमल रॉय की फिल्में देखें, या उसके बाद आप मिर्च मसाला देखें, which was very, very feminist, very अभिमान देख लें, या तो आप उमराव जहान देख लें, but they were very far and few जहाँ पर filmmakers मेल गेज में भी प्रो फेमिनिस्ट फिल्म्स बनाते थे, अच्छे फीमेल किरदार लिखते थे. But now with OTT, I think it's just magnified because there are a lot of roles that are written with female gaze. There are a lot of female, creative heads, a lot of female writers, directors.
actors who are there who will not compromise on their roles कि अच्छा ये बड़ा platform है, यहाँ पर इसके incentives materialistic है, यहाँ पर ये बड़े actors है, but if you're not given what you want to do, people are backing out, and thank God for that. So I think जो far and few characters थे वो अब कहीं ज़्यादा बढ़ रहे हैं, and as a female actor I must tell this that I feel very secure to grow old, Pooja, because we live in a society where men become sir at 40 and women become auntie at 40. So अब वो बढ़ गया है, वो बिल्कुल बदल चुका है. Today you have Neena Gupta and Sanjay Mishra doing protagonists or characters that are centrally written. You have Aisha ji, you have Amrita ma'am, you have Indira, myself, and roles that are written for every age and every society and every stratas of life. Like ये वेस्ट में होता था, यूरोपियन सिनेमा में होता था या हॉलीवुड में होता था, और हम सोचते थे कि इतने बढ़िया एक्टर्स हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है. एंड आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू OTT and Netflix and the makers today, because audience हमेशा थी, but I think the makers today are really making that difference. The writers today are making that difference, and as actors I must congratulate my community for taking up those roles and saying no to the roles that do not matter and saying yes to the roles that matter. Very well put. Anyways, as they said, hamara time aa gaya. Thank you so much, ladies. Keep entertaining and more power to you. Thank you, Pooja. Thank you. Great talking to you, Pooja.